Good morning children, this is 6th video of 6th chapter, that is Bhakti and Sufi tradition and changes in religious belief. So in previous video we discussed about the Sufism and the Silsila, and here we are going to discuss about the Chistis in the subcontinent and the lifestyle in Chisti Khanqa. So one thing I want to mention here, कि amongst the groups of Sufis who migrated to this subcontinent, Chistis were the most influential communities in the last decade of 12th century. So question is कि why the Chistis were most influential amongst all? Because they adapted successfully local environment and adopted several features of Indian devotional tradition. So Chisti Khanqa was the center of social life. The students who visited Delhi, they must have seen the hospice of Sheikh Nizamuddin Aulia on the bank of the river Yamuna in Gyaspur, outskirt of city of Delhi. If you have seen, that's it, it's okay. But if you have not seen, when you visit Delhi, must go there on the hospice of the Nizamuddin Aulia Dargah. So this is the picture of current center of the Nizamuddin Aulia. It was known as Dargah, and Urs organized every year on the death anniversary of Saint Nizamuddin Aulia. So this hospice comprised several small rooms and a big hall. Big hall was known as Jamaat Khana. It was the inmates and visitors, where the inmates and visitors lived and prayed. The inmates included family members, the kith and kin of Sheikh, along with the attendants and disciples. So who were the inmates? Inmates were the family members and kith and kin of Sheikh. The Sheikh lived in a small room on the roof of the hall, where he met visitors in the morning and evening. इस खानखा के ऊपर एक बड़ा सा हॉल था जहाँ पे वो मॉर्निंग एंड इवनिंग में शेख जो थे वो विजिटर्स से मिला करते थे, उनकी क्वेरीज सॉल्व किया करते थे. सो a veranda surrounded the courtyard and boundary wall run around the complex. So it was a huge complex, veranda and the big hall and several rooms was there, because several visitors they used to came there from morning to night. So at the time of Mongol invasion, you must have read in class 11th history book that Mongols in 1306 Mongol invaded India at the time of Alauddin Khilji. When Alauddin Khilji ruled over here, Mongols were Chagtai Khatke invaded India, but it was a wise decision taken by Alauddin Khilji, and he appointed Malik Kafur to control the military army, and Alauddin Khilji achieved a decisive victory on Mongols. So because of sudden invasion, people kept themselves safe in this Khanqa of Nizamuddin Aulia. I mean to say, it was the center of social practices. It was not restricted for the Muslim people and someone else, but it was open to all. Anyone can visit there, they stay there, they can solve their queries, they can pray. So it was open to all, and it was the center of social life. So there was an open langar run on Futuh. So Futuh is a Persian term. It means unasked for charity. लंगर के बारे में आप सब जानते होंगे कि those who came to attain healing and find peace, they could take meal from this futuh. Futuh does it mean langar. Sheikh was busy in healing and giving answer to their queries from morning till late night. Whose queries? The people who came there. People like soldiers, slaves, singers, merchants, poets, travelers, rich and poor, Hindu yogis, Kalandars, they used to came in Khanqa and used to stay there. So other visitors included poet as Amir Hasan Rizvi and Amir Khusro, and the court historians Jauddin Burni, all of whom wrote about Sheikh. जितने भी पोइट्स एंड नरेटर्स एंड ऑथर्स हुए हैं वो सब वहाँ पे उस समय के तत्कालीन विजिट किया करते थे, और वहाँ के लाइफस्टाइल, वहाँ के क्योंकि इतनी ये पवित्र जगह थी कि लोग वहाँ जाना पसंद करते थे. तो आमिर खुसरो जो कि अलाउद्दीन खलजी के दरबार के ग्रेट पोइट हुए हैं, और उनकी पोएम्स जो हैं अभी भी कव्वाल्स के द्वारा गाए जाते हैं.
उसी तरह से आमिर हसन सिजवी और जियाउद्दीन बर्नी, ही वॉज अ ग्रेट ऑथर। तो ये सब इन सब ने उनके बारे में लिखा है। सो सम सेट ऑफ प्रैक्टिसेस वर डेवलप्ड फॉर द विजिटर्स। जो विजिटर्स थे उनको कुछ प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करनी होती थी, फॉलो करना होता था। जस्ट लाइक बोइंग बिफोर द शेख, जब वो जाते थे तो शेख के सामने उनको झुकना पड़ता था। ऑफरिंग वाटर टू विजिटर्स, और वहाँ पे जो लोग रहते थे, वो जो उनके अटेंडेंट्स थे, उनको जो विजिटर्स थे उनको पानी ऑफर करना होता था। शेविंग द हेड ऑफ इनिशिएट्स, जो डिसिपल बनना चाहते थे उनको अपने बाल उतारने होते थे। योगिक एक्सरसाइज होती थी। सो ऑल दीज प्रैक्टिसेस रिप्रेजेंटेड अटेम्प्ट्स टू इनकॉर्पोरेट लोकल ट्रेडिशन, और ये सारे लोकल ट्रेडिशंस थे जो इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था वहाँ की डेली एक्सरसाइजेज में, डेली प्रैक्टिसेस में। सो नाउ शेख निज़ामुद्दीन अपॉइंटेड several spiritual successors and deputed them to set up hospice in the various parts of the subcontinent। उसके बाद शेख जो थे, जब ये बहुत पॉपुलराइज हो गया तो उन्होंने अपने सक्सेसर अपॉइंट किए कि सब कॉन्टिनेंट इंडिया में हर जगह जा कर के और वो अपने हॉस्पाइस इस्टेब्लिश करें। So as a consequence, teaching practices and the organization of the Chistis as well as fame of the Sheikh spread rapidly। और इस तरह से इन सारी प्रैक्टिसेस के कारण जो शेख का जो ये खानखा था वो बहुत ही जल्दी पॉपुलराइज हुआ चिश्ती का। नाउ द चिश्ती डिवोशनलिज्म। चिश्ती डिवोशनलिज्म के दो पार्ट हैं, जिक्र एंड जियारत। All these were the Persian term. Zikr, does it mean chanting the verses, chanting the name of the God, chanting the name of Allah, and ziyarat, that does it mean pilgrimage, to visit a holy place. So ziyarat means pilgrimage to tomb of Sufi saints in prevalent all over the Muslim world. To visit on the shrine tomb of Sufi saint on the time of Urs and on the occasion of Urs for seeking the Sufi spiritual grace, barakat। अब सूफी स्पिरिचुअल ग्रेस को यहाँ क्या कहा गया? बरकत। सो for more than 7 centuries, people of all sects and social background have expressed their devotion at Dargah of the 5 great Chishti saints। अब इन सब में जो 5 ग्रेट चिश्ती सेंट्स हुए हैं, उन सब में जो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल थे उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। बट हु वर द 5 चिश्ती सेंट्स? देवर शेख निज़ामुद्दीन चिश्ती, दैन ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, दैन शेख फरीदुद्दीन जो कि फरीदुद्दीन जिनका कि दरगाह पाकिस्तान में है, यजुधन, दैन शेख निज़ामुद्दीन औलिया जिसके बारे में हम अभी डिस्कस कर रहे थे दिल्ली में, एंड देन शेख नसीरुद्दीन चिराग। तो ये 5 सेंट्स हुए हैं, ग्रेट सेंट्स हुए हैं जिनकी दरगाह पे हर साल उनकी डेथ एनिवर्सरी मनाई जाती है इन द फॉर्म ऑफ उर्स। So the most respected and revered shrine amongst all 5 is ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, पॉपुलरली नोन एज गरीब नवाज। तो आपने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे बहुत सारे बच्चे हैं जो गए होंगे और वहाँ के बारे में देखा होगा, जो कि अजमेर में है। हमने पहले भी डिस्कस किया कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती वॉज द फाउंडर ऑफ चिश्ती सिलसिला इन 1192 इन इंडिया। ही डाइड इन 1236 and his tomb in Ajmer was constructed by Ghiyasuddin Khalji of Malwa. This Chishti order was primarily followed in Afghanistan. So Chishti, it is a name of a place. तो चिश्ती चूँकि वहाँ से लोग आए थे, उस जगह से आए थे और उन्होंने एक सिलसिला की नींव रखी थी, इसलिए इसे चिश्ती सिलसिला का नाम दे दिया गया। और 5 ऐसे हुए हैं जो कि चिश्ती सिलसिला जिनको माना गया है, और उनमें सबसे महत्वपूर्ण है गरीब नवाज जो कि अजमेर में जिनकी श्राइन है। Then historians found the textual reference of ख्वाजा साहब dated to the 14th century। 1236 में इनकी डेथ हो गई थी, लेकिन हिस्टोरियंस जो है उनको टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन मिला कि 14th सेंचुरी में यहाँ पे कंस्ट्रक्शन बनना शुरू हुआ, पॉपुलराइज हुआ। दिस दरगाह वॉज पॉपुलर बिकॉज ऑफ द गुडनेस एंड प्योरिटी ऑफ शेख, द ग्रेटनेस ऑफ हिज स्पिरिचुअल सक्सेसर एंड द पैट्रोनेज ऑफ रॉयल विजिटर्स। तो बहुत सारे ऐसे एट्रीब्यूट्स थे, बहुत सारे विशेषताएं थी जिसके कारण ये गरीब नवाज का जो खानखा था, गरीब नवाज का जो दरगाह था वो बहुत ही पॉपुलर होने लगा। इतना पॉपुलर कि रॉयल पैट्रोनेज, रॉयल विजिटर्स, रॉयल फैमिली के जो विजिटर्स थे वो हमेशा ही यहाँ आते रहते थे और गिफ्ट
प्रेजेंट के रूप में अपने गिफ्ट यहाँ पे देते थे. सो मोहम्मद बिन तुगलक वॉज द फर्स्ट सुल्तान टू विजिट द श्राइन. पहला सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक थे जो यहाँ पे विजिट किया था. बट द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस ऑन द टॉम मेड बाय मालवा सुल्तान गयासुद्दीन खलजी. लेकिन इस जगह पे जो कंस्ट्रक्शन का काम करना होना शुरू हुआ वो मालवा के सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने करवाना शुरू किया 15th सेंचुरी में. सिंस दिस श्राइन वॉज लोकेटेड ऑन द ट्रेड रूट लिंकिंग दिल्ली एंड गुजरात, इट अट्रैक्टेड अ लॉट ऑफ ट्रैवलर्स. चूँकि ये ट्रेड रूट पे है इसलिए यहाँ पे बहुत सारे ट्रैवलर्स जो नहीं जानते हैं वो भी यहाँ पे पहुँच जाते हैं बिकॉज ऑफ इट्स पॉपुलरिटी. एंड बाय द 16th सेंचुरी द श्राइन had become very popular because the prayer qawwals singing by the pilgrims attracted Akbar to visit the tomb. यहाँ पर जो प्रैक्टिसेस यूज़ किए जाने लगे, जो प्रैक्टिसेस यहाँ पे रूटीन में चल रहा था, उसके कारण अकबर जो उस समय राजा थे, यहाँ पे शासक थे, वो अट्रैक्ट हुए और वहाँ पे गए और इतने ज़्यादा प्रभावित हुए, इन्फ्लुएंस्ड हुए वहाँ के एनवायरनमेंट से कि वो जितने 14 times ही विजिटेड देयर. Great Emperor Akbar, he visited there 14 times and sometimes 2 or 3 times in a year. But why did they come there? To seek blessings for new conquest, fulfillment of vows and the birth of son. He maintained this tradition until 1580. And each of these visits was celebrated by generous gifts. जब भी जाते थे तो बहुत दिल खोल के दान किया करते थे वहाँ पे, which were recorded in imperial documents. और in 1568 he offered a huge deck to facilitate cooking for pilgrims. एक बहुत बड़ा देक, एक यूटेंसिल जिसको कहा जाता है, वो उन्होंने वहाँ पे दान किया था लोगों के पिलग्रिमेज के खाना बनाने के लिए और उनको देने के लिए. ही ऑल्सो हैड अ मॉस्क कंस्ट्रक्टेड देयर. और उसके बाद उन्होंने एक मॉस्क भी वहाँ पे बनाया. ये जो आप ग्रीन कलर का यहाँ देख रहे हो, दिस मॉस्क मेड बाय अकबर एंड दिस वाज द मेन कंस्ट्रक्शन, दिस वाज द मेन एरिया ऑफ दिस खानका गरीब नवाज. Then music and dance including mystical chants performed by special trained musicians or qawwals to attain divine ecstasy were the part of ziyarat. अब यहाँ जो लोग आते थे पिलग्रिमेज के लिए, विजिट करने के लिए, उनके लिए म्यूज़िक एंड डांस परफॉर्मेंस यहाँ पे रखा जाता था. अभी भी जब आप वहाँ जाओगे तो आपको कव्वाली और विभिन्न तरह के एक डिफरेंट प्रोग्राम वहाँ पे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं ताकि पिलग्रिमेज जो है वो एक बहुत ही विशुद्ध मन से और अपनी गॉड से कनेक्टिविटी, अल्लाह से अपनी कनेक्टिविटी क्रिएट कर सकें. So were the part of ziyarat. The practices were very important at Khanqa because the Sufis remember God Allah either by reciting the जिक्र. जिक्र जैसा कि मैंने बताया कि दो पार्ट थे ऐसे खानका के, जिक्र एंड जियारत. तो जिक्र does it mean the divine, chanting the divine names or evoking his presence through sama. अब जिक्र एंड सामा जो है इसका मतलब है कि जितने भी म्यूजिकल प्रेजेंटेशन होते हैं और जिसको सुन करके, जिसे हम सुनते हैं ऑडियंस, that is referred as sama, and jikr is the chanting divine names. So jikr was the divine names or evoking his presence through sama. Audition or performance of mystical music was the integral part of the Chishti. So this exemplified the interaction of इंडिजीनियस ट्रेडिशन. और ये सारी चीज़ें, डांस, गाना, कव्वाली, ये सारी चीज़ें ये प्रूव करता है कि ये यहाँ का इंडियन लोकल ट्रेडिशन था. सो लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन इन दिल्ली, दोज हु एसोसिएटेड विद चिश्ती सिलसिला, they conversed the Hindvi. They conversed in Hindvi. So what was Hindvi? Hindvi is an Indo-Aryan language deriving its base from the Western Hindi dialect of Delhi, also known as खड़ी बोली. तो हिंदवी जो कहते थे उस समय उसे खड़ी बोली का नाम दिया जाता था. और जो लोग इस दरगाह पे आते थे और खानका पे आते थे उनको हिंदवी में बात करनी होती थी, वो हिंदवी में ही बात करते थे, खड़ी बोली में बात करते थे. सो अदर सूफीज सच एज बाबा फरीद कंपोज्ड वर्सेस इन द लोकल लैंग्वेज विच वर इनकॉर्पोरेटेड इन गुरु ग्रंथ साहब. अब आपने बाबा फरीद के बारे में सुना होगा, उन्होंने जो वर्सेस कंपोज किए उसे गुरु ग्रंथ साहब इज़ अ होली बुक ऑफ पंजाबीज एंड सिख्स, और उसमें बाबा फरीद के लिखे हुए वर्सेस को इंक्लूड किया गया है. सो अदर पोइट्स कंपोज्ड पोएम्स और मसनवी
अब मसनवी जो है कंपोजिशन और पोएम्स को कहा जाता है इन पर्सन टर्म टू एक्सप्रेस आइडियाज ऑफ डिवाइन लव यूजिंग ह्यूमन लव एज एन एलेगरी। अब यहाँ पे ह्यूमन लव एंड डिवाइन लव को एक कॉम्बिनेशन रूप देने के लिए, जैसा कि अभी आपने देखा पद्मावत मूवी आई थी एज पद्मावत रिटन बाय मलिक मोहम्मद जैसी। मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत लिखा जिसमें उन्होंने पद्मावती एंड राजा रतन सेन की लव स्टोरी को एक डिवाइन फॉर्म क्रिएट किया है। तो इस तरह के देयर ट्रायल्स वर सिंबॉलिक ऑफ द सोल्स जर्नी टू द divine form. So such poetic compositions were often recited in hospice during Sama। और इस तरह के पोएटिक कॉम्पिटिशन एंड कंपोजिशन जो थे वो रिसाइट किए जाते थे सामा के प्रवचन के दौरान। सो अ डिफरेंट जेनर ऑफ सूफी पोएट्री वॉज कंपोज्ड इन एंड अराउंड द टाउन ऑफ बीजापुर। अब एक दूसरे फॉर्म के बारे में हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं जो कि बीजापुर कर्नाटका में डेवलप किया गया। दीज वर शॉर्ट पोएम्स इन दक्कनी लैंग्वेज। दक्कनी जो है इट वॉज द अनदर फॉर्म ऑफ उर्दू, और इस फॉर्म में वहाँ पे ये कंपोजिशन, बहुत सारे कंपोजिशन ऐसे कंपोज किए गए एट्रीब्यूटेड टू चिश्ती सूफी हु लिव्ड इन दिस रीजन। जो चिश्ती सूफी यहाँ पे इस रीजन में रहते थे उनके एट्रीब्यूट, उनको गुणों को डिस्क्राइब करते हुए ऐसे पोएम एंड कंपोजिशन लिखे गए ड्यूरिंग 17th and 18th century, and these poems were sung by women while performing household chores like grinding and weaving, and other compositions such as lullabies, शादीनामा, वेडिंग सॉन्ग। तो इस तरह से शादी के समय पे गाए जाने वाले कुछ कंपोजिशंस, लोरी के रूप में कुछ कंपोजिशंस ऐसे कंपोज किए गए। इट माइट बी सूफीज ऑफ दिस रीजन वर इंस्पायर्ड बाय द प्री एग्जिस्टिंग भक्ति ट्रेडिशन ऑफ द कन्नर वाचन लिंगायत्स ऑफ द लिंगायत्स एंड द मराठी अभंग्स ऑफ पंढरपुर। अब जो पंढरपुर के रहने वाले लोग हैं उनका अभंग एक रिलीजियस सेट ऑफ सॉन्ग है। उसी तरह से जो लिंगायत्स हैं, जैसा आपने पहले पढ़ा हुआ है कि लिंगायत्स ने अपना एक वाचन कुछ वर्सेज उन्होंने कंपोज किए थे। तो ये लोकल ट्रेडिशन जो था उसको देखते हुए यहाँ पे इस तरह के कंपोजिशन क्रिएट किए गए सूफीज के द्वारा, चिश्तीज के द्वारा। इन दिस वे इस्लाम ग्रेजुअली गेन्ड अ प्लेस इन द विलेज ऑफ दक्कन। और दक्कन में भी ये जो चिश्ती सिलसिला था वो बहुत ही पॉपुलराइज हो रहा था, बहुत ही पॉपुलर हो रहा था। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो।